Hi everybody and welcome back to my channel. In this video, we'll be starting with factors leading to growth of nationalism and foundation of Indian National Congress. So this is chapter number 2 of History Civics ICSE 10th, and gradually we'll be moving on to the next chapters covering the whole syllabus. I'll make a course in which I'll put all the videos and you can buy it. Shortly, I'll be sharing the link in the description. It will take around 20 days for me to make this whole course, so you can purchase that. Right? Let's begin with this very interesting chapter. Now, the first question is, what is nationalism? What is this? So it denotes patriotism or devotion to the nation, right? ये जो आपकी देशभक्ति होती है, that is what is nationalism. I'll be bilingual and I hope it doesn't matter you or it will not create a difference, because I want you to understand these concepts easily, and it's going to be a very easy chapter. You just have to learn the Samaj, the founder, and the objectives of INC and so on. Okay. सो पहला तो ये पॉइंट है कि इट डिनोट्स पैट्रियोटिज्म और डिवोशन टू द नेशन. नाउ ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनाई गई थी, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? द ऑब्जेक्टिव वाज मेनली टू एंड ऑल रेशियल, रिलीजियस एंड प्रोविंशियल prejudices, right? And see, what is the meaning of nationalism? It is the feeling of oneness, in very simple words, right? Feeling of oneness. Now we will discuss about a 19th century nationalism. And yes, the doctrine of nationalism turned into belief that our nation was entitled to independent statehood. The main motto of Indians were to get rid of the foreign domination. Right? Okay, next heading is, so Raja Ram Mohan Roy. We'll be discussing the socio-religious reform movements. In this, first we will discuss about Raja Ram Mohan Roy, right? So he founded the Brahmo Samaj. This Brahmo Samaj was earlier called Brahmo Sabha. Okay, it was established in 1828, and it was not just a religious movement. It was included in its program matters of social and political reform. So ये इसी वजह से इस ब्रह्मो समाज के आते हुए देयर वाज अ न्यू अवेकनिंग इन इंडिया. सी, उनका अप्रोच क्या था रिलीजन को लेके, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, राइट? जो राजा राम मोहन रॉय थे वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, एंड ही स्ट्रेस्ड अपॉन द यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स. ही वांटेड कि सारे रिलीजन्स एक साथ रहें, क्योंकि आफ्टर ऑल इंडिया इट सपोर्ट्स डाइवर्सिटी, और जितने रिलीजन्स यहाँ पर हैं सब एक साथ रहें, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो. और राइट, सो यार राजा राम मोहन रॉय ही वॉज इंस्पायर्ड बाय मोनोथिज्म. Now, what is the meaning of monotheism? This means unity of Godhead. एक ही गॉड होना चाहिए. हमारे अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग गॉड्स हैं, बट दे बिलीव्ड इन मोनोथिज्म ऑफ इस्लाम, जिसमें कि एक गॉड होते हैं. द एथिकल टीचिंग्स ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड सबलाइम डॉक्ट्राइन्स ऑफ उपनिषद्स. This is what he encouraged. Okay. Now we will talk about the social reforms. Social reforms. So the Brahmo Samaj attacked the caste system. The caste system was very rigid at that time. He also attacked the practice of polygamy. What is polygamy? Polygamy का meaning होता है जब एक हस्बैंड क्या करेगा, शादी करेगा, एक हस्बैंड की सपोज 2 वाइफ्स हैं, ठीक है, तो उसको पॉलीगैमी कहते हैं. यूजुअली रूलर्स लाइक मुगल रूलर्स, उनकी काफ़ी वाइफ्स होती थी, सो पॉलीगैमी इज दैट. ओके.
देन राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड हिज एंटी सती क्रूसेड. वो सती के बिल्कुल अगेंस्ट थे, बिकॉज दिस वॉज अ प्रैक्टिस विच ही रियली वॉन्टेड टू एलिमिनेट फ्रॉम द सोसाइटी. ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि देखिए, एंटी सती क्रूसेड कब स्टार्ट हुआ? 1818 में. इट वॉज इन 1829 दैट द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज मेड इलीगल इन इंडिया. और 1829 में ये इलीगल भी हो गया था इंडिया में. और ये चीज़ ब्रिटिशर्स ही लाए थे, जिस वजह से ही दैट वाज वन ऑफ द कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, लाइक अ वेरी मिनी माइनर कॉज. जो आपके फर्स्ट चैप्टर है, वी हैव कवर्ड डिफरेंट कॉजेज फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857. He practiced against the practice of denying women the right to property. He wanted कि जो women's हैं उनको भी right मिले property में. ऐसा नहीं है कि जो फादर है वो इनहेरिट उनका जो प्रॉपर्टी होगा वो उनके सिर्फ सन्स को मिले. ही ऑल्सो वॉन्टेड दैट इक्वल पार्टीशन शुड बी गिवन टू द डॉटर्स एज वेल. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लिबर्टी राइट्स एंड फ्री प्रेस. So Raja Ram Mohan Roy recognized the blessings of British rule in India. He could also see the importance of English education in the modern world. English एक important चीज़ थी उस time, and in spite of his admiration for the British, Raja Ram Mohan Roy was a staunch nationalist. He regarded liberty as a priceless possession of every individual. He wanted कि चलो ठीक है, ब्रिटिशर्स ने जो चीज़ें लाई हैं इंडिया में, they imparted education to the Indians, right? English लाए हैं society में. Still he wanted liberty. Liberty means freedom. And this freedom was कि ब्रिटिश जो हैं, जो उनको रूल कर रहे हैं जिस तरीके से, रिग्रेस ट्रीटमेंट्स वगैरह, तो उसको वो चाहते थे कि ये बंद हो जाए सब कुछ, राइट? अब यहाँ पर जो राजा राम मोहन रॉय है, ही स्टार्टेड पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स. तो यहाँ पर आपके न्यूज़पेपर्स हम नेम देंगे जो कि इम्पोर्टेंट है. बंगाली वीकली, जिस न्यूज़पेपर का नाम है संवाद कौमुदी. तो ये इनका एक न्यूज़पेपर है जो कि 1821 में स्टार्ट हुआ था. लेटर ही स्टार्टेड अ पर्शियन पेपर कॉल्ड मीरत उल अखबार. दीज आर द पब्लिकेशंस ऑफ राजा राम मोहन रॉय. और इसमें एक नेशनलिस्ट और प्रोग्रेसिव कैरेक्टर था, जैसे कि जो इंडियंस है उनको नेशनलिस्ट वाली फीलिंग आए, एंड इस तरीके से वो कैसे इंस्पायर कर रहे थे इंडियंस को कि देखिए जो पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की काफ़ी कुछ हार्श है, तो ताकि जो सोसाइटी है वो अवेयर रहे, वरना कैसे पता चलेगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट फ़ायदा उठा रही है इंडिया का. And Roy also presented a petition to the Supreme Court for legal action to be taken against the press regulations. Supreme Court में भी इनका केस गया था प्रेस रेगुलेशंस को लेके. ओके, हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, जिसमें वी विल कवर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. ओके, नाउ हिज इकोनॉमिक आइडियाज. If you think that I am going very slow, you can speed up to 2 into. So his economic ideas, he was very sympathetic to the cause of the poor peasants. He wanted the military budget to be reduced so that more funds were available for activities concerned with the health and education of the people. तो ये क्या करा इन्होंने, क्योंकि उस टाइम मिलिट्री बजट जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, और वो चाहते थे कि इस मिलिट्री का जो बजट है उसको थोड़ा रिड्यूस करके ये बजट कहाँ लगाया जाए, ये पैसे कहाँ लगाए जाए, हेल्थ और एजुकेशन में, फॉर द पुअर पीपल. तो ये गए इंग्लैंड 1830 में. He gave him an opportunity to appear before a select committee of the British Parliament. और यहाँ पर इन्होंने क्या करा
इस कमेटी को इन्होंने पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस बताई इंडिया की, ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, राइट। सो इतना ही था राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में। नाउ वी विल स्टार्ट विथ कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्योतिबा फूले। He was born in 1827 in Satara district of Maharashtra, and the family earned their living by growing flowers. तो ये मालीज बैकग्राउंड से थे। देखिए फूले मालीज बैकग्राउंड यानी गार्डनर्स, फ्लोरिस्ट होते हैं ना। नाउ इनके जो सोशल रिफॉर्म्स हैं वो क्या क्या है। फर्स्ट, अपलिफ्टिंग लोअर कास्ट। देखिए ये खुद ही एक लोअर कास्ट से थे एंड ही वांटेड कि जो दूसरे लोअर कास्ट के साथ जो चीज़ें होती हैं, जो प्रॉब्लम जो फेस करते हैं, तो इन सबको वो हटाना चाहते थे। द कास्ट स्ट्रक्चर वॉज टू हिम स्लेवरी। हिज बुक गुलामगिरी, उनकी एक ये जो बुक है गुलामगिरी, गुलामगिरी मीन्स स्लेवरी, फोकस्ड ऑन द ब्राह्मण डोमिनेशन। You know about the Brahmins, then Kshatriyas, then Vaishyas, and then Shudras. ये कास्ट डिविजन था उस टाइम, जिसमें ब्राह्मण्स को सबसे टॉप पोजीशन में माना जाता था, देन क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। सो यहाँ पर वो बोलना चाहते थे कि जो ब्राह्मण डोमिनेशन है यहाँ पर बहुत गलत चीज़ है, जिस तरीके से कि अनटचेबिलिटी एक बहुत रॉन्ग चीज़ है जो प्रैक्टिस करी जाती है सोसाइटी में। यू विल कम टू नो अबाउट दिस इन द लेटर चैप्टर्स। सो उस टाइम ऐसा होता था कि अगर कोई शूद्र है, अगर सपोज किसी ब्राह्मण ने शूद्र को देख लिया और वो अभी भी नहा के आए हैं, पंडित जी उन्हें शूद्र को देख लिया जो झाड़ू मार रहा है, तो उनको फिर से नहाने जाना पड़ता था, बिकॉज ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज पॉल्यूटेड। अगर उनको देख लिया तो ये कितनी ज़्यादा सीरियस इश्यूज थे कास्ट को लेकर। सो ही फोकस्ड ऑन द ब्राह्मण डोमिनेशन एंड द पॉवर्टी, हार्डशिप, distress which the lower caste faced. So ये सब प्रॉब्लम्स थी जो लोअर कास्ट फेस करते थे, एंड ही वॉज रिप्रेजेंटेटिव फॉर द लोअर कास्ट पीपल। ही स्ट्रांगली फेल्ट दैट ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ दलित्स could be solved if proper education was provided to them. अगर उन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिल जाए दलित्स को। अब ये जो दलित्स होते हैं ना, उस टाइम ये लोअर कास्ट माने जाते थे, एंड जिसको कि हम बोलते हैं शूद्रास एंड अतिशूद्रास। If you read about Shudras, they were engaged mostly in the activities like sweeping, washing, and burning of dead bodies, and so on. Now, the second thing he started was gender justice. Fule said that women were superior to men because they bore children and nursed them. एक विमेन है जो सोसाइटी में, उसको वो ज़्यादा बड़ी होती है, वो ज़्यादा सुपीरियर होती है इन टर्म्स ऑफ जो वो करते हैं, जैसे कि वो चिल्ड्रन चिल्ड्रन मतलब बच्चे, हम जैसे विमेन है वो प्रेग्नेंट होती हैं, वही बच्चा करती हैं और वही बच्चे देती है, उनका देखभाल करती है, पूरा घर संभालती है। So men kept their women uneducated so that they would never question their domination. So Fule established in 1848 one of the first girls' school in India. यही थे जिन्होंने first girls' school बनाया था. At that time, women education was criticized and men never want that they should come at par with them, right? अब यहाँ पर उन्होंने एक और ऑर्फनेज भी बनाया था 1854 में टू प्रोवाइड shelter to poor people, to poor widows and their children. एक ऑर्फनेज उनके लिए भी बनाया था. You can just note down all these points that I am dictating so that when you have your exam, one day before your exam, you can just read the notes, right? But आप books को भी refer करना, they are the most important thing.
He also founded a number of schools for girls and the lower caste, that is the Mehers एंड मांग्स. तो उन्होंने काफ़ी स्कूल्स बनाए गर्ल्स के लिए भी और लोअर कास्ट के लिए. थर्ड, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने कौन सा समाज बनाया? सत्य शोधक समाज. नाउ फूले फाउंडेड द सत्य शोधक समाज ऑन 24th September 1873. The society endeavored to mitigate the distress and sufferings of Dalit and women. Dalits और जो विमेन जो फेस कर रहे थे एट्रॉसिटीज़, उसको कम करने के लिए उन्होंने ये समाज बनाया. नाउ हिज वाइफ सावित्री बाई फूले. देखिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि ज्योतिबा फूले एक मेल है. उनको लगता है ज्योतिबा कोई लड़की का नाम है. नो, ही इज अ मेल. हिज वाइफ सावित्री बाई फूले was the head of the women's wing. अपनी वाइफ को इन्होंने हेड बनाया. नाउ कैरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. ब्रिटिश एम्पायर ने इस चीज़ के लिए फूले को प्रेज भी करा, बिकॉज इट गेव इंडियंस अ टूल विद विच टू फाइट सोशल इनजस्टिस. एंड इवन इन इस बुक गुलामगिरी, जो इन्होंने बुक गुलामगिरी लिखी थी, उसमें भी फार्मर्स और जो लेबरर्स थे और सैलरीज जो थी वो सारी डिपेंडेंट किस में थी? गवर्नमेंट में. ठीक है. एक और बार मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ. आई थिंक आई रेड समथिंग रॉन्ग. सो यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि जो फार्मर्स हैं उन्हीं के लेबर्स पे जो गवर्नमेंट है, आर्मी है और सैलरी है, वो सब डिपेंड करता था. ओके. नाउ वी विल स्टार्ट विद द कंट्रीब्यूशंस ऑफ अदर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स. स्टार्टिंग विद आर्य समाज. फाउंडर एंड डेट आप पक्का याद कर लेना. द आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन 1875 बाय स्वामी दयानंद. He opposed caste system, and encouraged female education. And remarriage of widows. आर्य समाज ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इन अर्ली स्टेजेस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. नाउ वी विल स्टार्ट रामकृष्ण मिशन. They have explained in brief about these religious reform movements. If you are interested, you can just Google and know more about this. So it was founded in 1896 by Swami Vivekanand. रामकृष्ण मिशन किसने स्टार्ट करा था? स्वामी विवेकानंद ने. एंड आर्य समाज किसने फाउंड करा था? स्वामी दयानंद. सो इनका प्रिंसिपल क्या था? इस मिशन का प्रिंसिपल क्या था? दैट सर्विस टू गॉड इज सर्विस टू men. It establishes hospitals and orphanages. इन्होंने ये दोनों चीज़ें स्टार्ट करी to alleviate the sufferings of those in distress. Okay, जिनको भी प्रॉब्लम्स है, पुअर पीपल हैं, विडोज हैं, इनके लिए ऑर्फनेजेस, ये सारी चीज़ें इसमें हुआ है. नाउ रिवाइवलिज्म अमंग द मुस्लिम्स. सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सर सैयद अहमद खान के बारे में, हु वॉज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट.
And the objective of the Aligarh movement was to instill in the Muslims a desire for Western education and culture. वो भी चाहते थे कि वो थोड़ा वेस्टर्न एजुकेशन को फॉलो करें और उनके कल्चर को. The Mohammedan Anglo-Oriental College was started at Aligarh in 1875. बाद में ये यूनिवर्सिटी बन गई थी. एंड सैयद अहमद खान डिड अ लॉट टू ब्रिंग अबाउट सोशल अवेकनिंग अमंग द मुस्लिम्स इन इंडिया. जो न्यूली एजुकेटेड मुस्लिम्स थे उन्होंने पॉलीगैमी को कंडेम करा और बोला कि ये सही चीज़ नहीं है. इवन द पर्दा सिस्टम एंड अदर इविल्स इन द सोसाइटी, इनको कंडेम करा. ये सही नहीं है, एनकरेज नहीं करते हैं इन सब चीज़ों को. Next, we will discuss about how did the reform movements promote the spirit of brotherhood and arouse nationalist ideas among the people of India. See, you have to just listen this like a story. If you understand things and इसको आराम से सुनोगे आप तो आपको स्टोरी की तरह लगेगी, आपको जल्दी लर्न भी होगा. सो ये रिफॉर्म मूवमेंट्स ने कैसे स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड लाए, कैसे नेशनलिस्ट आइडियाज़ को अराउज करा. ठीक है, इससे नेशनलिज्म कैसे बढ़ा इन मूवमेंट से. फर्स्ट, see all these reformers denounced untouchability and the rigidities of the caste system. Caste system at that time was very rigid. As I told you about the partition of the society in 4 groups, Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras. उनमें अनटचेबिलिटी बहुत होती थी लोअर कास्ट के साथ, जो कि मैंने आपको बताया वैश्यास के साथ, शूद्रास के साथ. सो इन्होंने आइडिया ऑफ इक्वालिटी लाए and they also attracted the attention of the so-called lower caste. Since lower caste were being represented and respected, उनको काफ़ी अच्छा लगा और इस वजह से काफ़ी लोअर कास्ट के लोग भी एक साथ आए. दे हैड अ फीलिंग ऑफ वननेस आफ्टर दिस, राइट. इक्वालिटी जब मिल रही है तो काफ़ी अच्छा लगता है. उस पहले बहुत ही बेकार ट्रीटमेंट होता था. अगर आप रीड करेंगे किस तरीके से एग्जाम्पल्स, कैसे कैसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर लोअर कास्ट पीपल के साथ इतना कुछ बेकार करा जाता था. उनको टच भी नहीं करते थे, अनटचेबल मानते थे उनको. उनसे काफ़ी चीज़ें नहीं खरीदा जाता था. उनके यहाँ से पानी नहीं पी सकते थे, काफ़ी चीज़ें थी. नाउ सेकेंड, एट अ टाइम व्हेन नेशन वाज सीज्ड विद डिस्पेयर एंड आइडलनेस, दयानंद एंड विवेकानंद बोल्डली प्रीच द गॉस्पेल ऑफ स्ट्रेंथ एंड सेल्फ रिलायंस. उस टाइम में जब नेशन काफ़ी परेशान था और नेशन काफ़ी डिस्ट्रेस था इन ब्रिटिशर्स से, उस टाइम जो दयानंद जी हैं और विवेक आनंद हैं, उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें करी जिससे कि लोगों को स्ट्रेंथ आया. ठीक है. थर्ड, ऑल दीज रिफॉर्मर्स बिलीव दैट द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन मस्ट कम फर्स्ट. अगर विमेन एजुकेट होंगी, if they are given their rights, then only the country can do well in this society, right. Fourth, see, all these reformers were inspired by the spirit of nationalism. They knew it fully well how India's resources were being exploited by the British. And so इनको सब पता था कि इस तरीके से ड्रेन करा जा रहा है सारा इंडियन गुड्स और किस तरीके से मिसयूज करा जा रहा है by the Britishers. So the colonialists had drained the life and blood from our people on whose labors depended the luxury of the white man. अब यहाँ पर हम इन्फ्लुएंस पढ़ेंगे ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन. इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन. See, the foreign rulers had imposed their language on the Indians for the sake of their own facility. इन्होंने इंग्लिश इंट्रोड्यूस करा और अगर ये कभी आया नहीं रहता तो शायद हम हिंदी ही बोलते. जैसे आप देख सकते हैं दूसरे कंट्री में लाइक चाइना, वो काफ़ी लोग, उनको इंग्लिश नहीं आती है, दे मोस्टली स्पीक चाइनीज़. सो द एडवांटेजेस ऑफ द नॉलेज ऑफ इंग्लिश वर मेनी. वेस्टर्न एजुकेशन से जो एजुकेटेड क्लास है उनको क्या पता चला, किसके बारे में पता चला, लिबर्टी के बारे में, इक्वालिटी के बारे में. जो ये वेस्टर्न आइडियाज़ हैं इनके बारे में पता चला.
इट ऑल्सो गेव देम अ कॉमन लैंग्वेज जिससे कि कम्युनिकेशन ईजी होती है. एंड इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज दैट कैन बी स्पोकन वर्ल्ड वाइड. सो इसे काफ़ी ईजी होता है टू अंडरस्टैंड अ कॉमन प्रोग्राम. जो नेशनलिस्ट थे इंडिया के, दे ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम एनी वर्क्स लाइक जैसे कि रस्किन बॉन्ड, रस्किन लॉक, J.S. मिल, वोलायर, ये सारे. ओके. They were also influenced by the French Revolution and the wars of Italian unification. यहाँ पर आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर रही थी मैं, जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी होती है, उससे काफ़ी इंडियंस इंस्पायर हुए थे. और इतना ही नहीं, काफ़ी यंग मैन वो इंग्लैंड भी गए थे एजुकेशन के लिए. नाउ रोल ऑफ प्रेस एंड इंडियन लिटरेचर. सी रोल ऑफ प्रेस एंड, आई होप सबको प्रेस का मीनिंग पता होगा. यहाँ पे प्रेस का मीनिंग आप कहीं वो क्लोथ्स वाला ना समझें. यहाँ पे प्रेस का मीनिंग होता है जो भी मीडिया होती है, जो न्यूज़पेपर्स आपको मिलते हैं, ये सारे प्रेस के अंडर आते हैं. ओके. जिससे कि इंफॉर्मेशन पता स्प्रेड होती है. फर्स्ट, द प्रेस. So Rajaram Mohan Roy was the founder of the nationalist journals in India. There had been a strict censorship on the publication of papers and journals. जो राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने प्रेस रेगुलेशन के अगेंस्ट, मैंने आपको जैसे बताया है, उन्होंने कमेटी को बोला भी था प्रेस रेगुलेशंस के अगेंस्ट. उन्होंने एक बैटल फाइट करा. सो जो राजा राम मोहन रॉय जी थे, मैं RRR लिखूंगी, आप मूवी मत समझना वो वाली. ओके. संवाद कॉमेडी उनकी, जो कि बंगाली वीकली होती थी. और पहले आप प्लीज़ न्यूज़पेपर्स देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या है. दादाभाई नारोजी, उनकी कौन सी है, रस्त गोफ्तार, जो कि गुजराती में. एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर, शॉर्टकट में लिख दिया. उनके एक जर्नल है सोम प्रकाश, ये भी बंगाली में है. तो ये सारे इनमें एक नेशनलिस्ट कैरेक्टर था. By the media of these newspapers, they would interact with the people of India and citizens. They aroused nationalism. Okay. Second, इंग्लिश डेलीज जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, उस टाइम से चल रहा है ये. द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि 1861 में फाउंड हुआ था. द पाइनियर, द स्टेट्समैन. ये जो न्यूज़पेपर्स थे, ये सपोर्ट कर रहे थे पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट. पर इससे क्या हो रहा था, जब पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे और जो पीपल थे उनको भी पता चल रहा था, लोगों को पता चल रहा था किस तरीके से रैपिड पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री में. काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉलिसीज गवर्नमेंट की सही नहीं होंगी, तो मे बी वो छुपाया जा रहा था. बट द developed things were covered in these newspapers and people were informed about it through the medium of press, of newspaper. थर्ड हम डिस्कस करेंगे एंग्लो बंगाली वीकली के बारे में. ठीक है. तो ये हमारी कौन सी न्यूज़पेपर थी, ये थी अमृत बाजार पत्रिका. ये एंग्लो बंगाली वीकली थी. इसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया था इंग्लिश डेली में, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया था. द ट्रिब्यून वॉज स्टार्टेड इन लाहौर. ट्रिब्यून, और जो हिंदू है, जो बहुत फेमस न्यूज़पेपर है, स्टार्टेड इन मद्रास, चेन्नई. यू डोंट हैव टू लर्न दीज स्टेट्स एंड ऑल. जस्ट write the names of newspaper and the person who started this. So these newspapers were a major factor in fostering patriotism
and ideas of liberty and justice. न्यूज़पेपर के थ्रू काफ़ी लोग, पहले जब न्यूज़पेपर सर्कुलेट नहीं होते थे तब कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या चल रहा है देश में। तो ये न्यूज़पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे ताकि सबको पता रहे क्या क्या चल रहा है। एंड केसरी भी एक है न्यूज़पेपर जो वीकलीज होती थी। ये किसने करा है? बाल गंगाधर तिलक। इस पॉइंट में लिख ही देते हैं। थ्रू हिज राइटिंग इन द केसरी एंड मराठा, Bal Gangadhar Tilak spread gospel of freedom and natural rights. The people were asked to unite and work for national welfare. Then we have second, national literature. Now this period further witnessed the production of outstanding works like Bhartendu Harishchandra's play Bharat Durdasa and Bankim Chandra's novel Andamat. So आप इसको एक बार बुक से देख लेना। एंड आर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, दिस वॉज टेकन फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। ये आनंद माथ है ना जो बुक, इसी बुक से लिया गया है। किसकी है ये? बंकिम चंद्र चैटर्जी। Next, we will study about the repressive colonial policies. क्या क्या कॉलोनी ने पॉलिसी रख रखी थी जिससे कि काफ़ी लोग परेशान भी हुए थे। I'll just drink water. So we will continue with the repressive colonial policies. So इंग्लिशमैन जो थे वो बहुत प्राउड थे अपनी रेस के लिए, और काफ़ी क्लब्स और रेलवे स्टेशन में जो यूरोपियंस थे वहाँ पर उन्होंने एंट्री बैन कर रखी थी इंडियंस की। और उनके एक रेजिडेंशियल एरिया था जिसको हम सिविल लाइन्स कहते हैं, जहाँ पर सिर्फ यूरोपियंस रह सकते थे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारी कंट्री में आकर हमें ही काफ़ी एरियाज में रहने नहीं दे रहे और ऐसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। नाउ लॉर्ड लिटन वॉज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया। इनका टाइम पीरियड क्या है? फ्रॉम 1876 टू 1880। देखिए, अगर वाइस रॉय की बात करी जाए तो सबसे अच्छे हमारे वाइस रॉय रह चुके हैं लॉर्ड लिटन, ओके, और लॉर्ड लिटन उतने ही बेकार हैं। अब देखिए उनकी पॉलिसीज जो थी वो काफ़ी कंट्री को गुस्सा आया उस चीज़ से। फर्स्ट इज द एज लिमिट फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इन 1877 द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 19। उन्होंने ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की एज 21 से 19 कर दी। ये जानकर भी करी थी क्योंकि इंडियंस वर वेरी इंटेलेक्चुअल एंड दे वांटेड इफ़ दे कंप्लीट ग्रेजुएशन, मतलब जब वो ग्रेजुएशन या स्कूलिंग कंप्लीट करें तब तक वो तो ऑफ कोर्स 19 से ऊपर के हो जाएंगे, राइट। तो वो नहीं चाहते थे एक तरीके से कि दे शुड अपीयर फॉर सिविल सर्विसेज। तो उन्होंने जो ये एज करी है 19, जिसमें कि बच्चा अभी अभी 12th से ही निकला है, ये तो बहुत गलत बात है। सेकेंड इज द इम्पीरियल दरबार। अब ये जो इंसिडेंट है इसमें क्या हुआ था कि एक दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन ने ऑर्गेनाइज करा था, और वो भी उसी टाइम जब साउथ इंडिया में एक सेकेंड बस, हाँ, साउथ इंडिया में फेमाइन चल रहा था, और उस फेमाइन में काफ़ी लोग जो थे वो इफ़ेक्ट हो रखे थे, और तब भी लॉर्ड लिटन आराम से दिल्ली दरबार उन्होंने कर रखा था। सारे पैसे जो है वहाँ पर वेस्ट करे इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग आउट साउथ इंडियन पीपल जहाँ पर फेमाइन है, जो कंडीशंस है, जहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ओके।
एंड वर्नाक्युलर पेपर्स जो थे उन्होंने इस इररिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सबको बताया। ये जो आपकी न्यूज़पेपर्स हैं उनसे पता चला लोगों को कि क्या क्या चल रहा है कंट्री में। नाउ प्रेस रेगुलेशंस, जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनैक्ट करा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, और ये आर्म्स एक्ट इन 1878। जो ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है इसको हम GAGGING गैगिंग एक्ट भी कहते हैं। इससे क्या होता है, जो फ्रीडम है ना वर्नाक्युलर पेपर्स की वो चली जाती है। एक तरीके से आप कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट या उसको डिफेम करने के लिए आप कुछ नहीं लिख सकते। मतलब गवर्नमेंट की जो हार्श पॉलिसीज है ऐसे आप कुछ लिख नहीं सकते हो जिससे कि इंडियंस में डिसअफेक्शन आए कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसा आप कुछ प्रिंट नहीं कर सकते हो, कुछ भी अनडिजायरेबल चीज़ नहीं कर सकते जो गवर्नमेंट नहीं चाहती है आपको प्रिंट करना। तो इसमें ये था। एंड मैनी एडिटर्स हु अपोज द एक्ट वर सेंटेंस्ड टू जेल। तो आप समझ गए ना किस तरीके से वो नहीं चाहते थे कि इंफॉर्मेशन जो है जिस तरीके जो हम कर रहे हैं इंडियंस के साथ, जो पॉलिसीज ला रहे, हार्श पॉलिसीज ला रहे, दे डिडंट वांट कि इंडियंस को पता चलेगी। देन इंडियन आर्म्स एक्ट, द इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 made it a criminal offense for Indians to keep or bear arms without license। यानी आप आर्म्स, आर्म्स का मीनिंग क्या होता है, कोई भी मिलिट्री वेपन, कोई भी आपको पता है जैसे गन्स हो गए, ये सारी चीज़ें आप नहीं रख सकते विदाउट लाइसेंस। ये क्राइम होगा अगर आप के पास आर्म्स है विदाउट लाइसेंस। देन इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। नाउ जो लॉर्ड रिपन थे जो कि लिटन के बाद आए थे, देखिए तो लॉर्ड रिपन आए थे, ये आ रहे ठीक है लिटन के बाद में। ही ट्राई टू रिड्यूस सम ऑफ द ग्रीवेंसेस ऑफ द इंडियंस। ये अच्छे और हम्बल थे ये लॉर्ड रिपन, एंड वो चाहते थे कि इंडियंस के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हुए वो कम हुए। बट इज अटेम्प्ट्स वर मार्ड बाय द कंट्रोवर्सी ओवर द इल्बर्ट बिल। पर ये इल्बर्ट बिल में आप देखिए क्या हुआ। एट दैट टाइम नो यूरोपियन कुड बी ट्राइड फॉर अ क्रिमिनल ऑफेंस एक्सेप्ट बाय अ यूरोपियन जज और मैजिस्ट्रेट। अगर कोई यूरोपियन आ गया सपोज, वो कोर्ट में आया और कोर्ट में कोई इंडियन है जज, तो ये यूरोपियन का डिसीजन ये इंडियन नहीं ले सकता है। ऐसा था इसमें इल्बर्ट बिल में। यानी यूरोपियन जो है उसको कौन ट्राई कर सकता है फॉर क्रिमिनल ऑफेंस, एक यूरोपियन जज ही या फिर जो भी मजिस्ट्रेट है। नाउ लॉर्ड राइपन ट्राइड टू डू अवे विद दिस एब्सर्डिटी। वो चाहते थे कि इक्वालिटी हो और ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ अगर यूरोपियन आए तो इंडियन नहीं करेगा, उसको ट्राई नहीं कर सकता है। अगर यहाँ पर सपोज इंडियन आए तो हाँ वो इंडियन कर सकता है। अगर हाँ यहाँ पर इंडियन आए तो यूरोपियन जज कर सकता है ट्राई। तो ऐसा क्यों नहीं कि अगर कोई यूरोपियन क्रिमिनल आ गया है तो उसको इंडियन ट्राई नहीं कर सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया। ये उनको समझ नहीं आया ये चीज़ क्यों कर रहे हैं। Accordingly, a bill was introduced in 1883 by Ilbert, the law member of the Governor General's Executive Council। तो ये 1883 में जो इल्बर्ट बिल आया है इसमें क्या था देखिए, इसमें यही था कि यूरोपियन जो है वो इंडियन से ट्राई नहीं हो सकता है। द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैरीड ऑन अ वाइल्ड एजिटेशन अगेंस्ट दिस मेजर। द गवर्नमेंट अल्टीमेटली विड्रू दैट बिल एंड नेगोशिएटेड अ कॉम्प्रोमाइज। अब इसके रिजल्ट में क्या हुआ, जो इंडियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और जजेस थे वो भी ट्राई कर सकते थे यूरोपियन ऑफेंडर्स को ऑन द कंडीशन दैट द अक्यूज वर टू हैव बेनिफिट ऑफ ट्रायल बाय ज्यूरी। पर यहाँ पर भी एक चीज़ थी, ये जो इसका ट्रायल है एक ज्यूरी करेगा, ठीक है। इन्होंने एक कंडीशन कर दिया, मैं आपको बताऊंगी कंडीशन क्या थी। उन्होंने बोला ठीक है यूरोपियन अगर आएगा कोई क्रिमिनल तो इंडियन नहीं कर सकते ट्राई, पर इसको ट्राई कौन कर सकता है, ज्यूरी कर सकता है। अब ये बॉडी ऑफ पीपल होते हैं वो डिसाइड वेदर द अक्यूज्ड इज गिल्टी और नॉट। अब इसमें हाफ मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी वर टू बी यूरोपियंस और अमेरिकन्स। और हर बार ऐसे होता था कि सपोज ये 5 मेंबर्स की है तो इसमें 3 तो ब्रिटिशर्स ही होते थे। तो एक तरीके से मेजोरिटी हमेशा उन पे होती थी, तो उनकी मर्जी थी वो यूरोपियन के साथ क्या करे। So these were the measure demonstrated that the British considered themselves to be racially superior to Indians.
सो आई होप यू गॉट इट। एक बार फिर से शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। उसमें बस ये था कि देखिए, अगर सपोज अब यूरोपियन है, अब वो आए, क्योंकि लॉर्ड रिपन को इससे दिक्कत थी कि ये क्या हो रहा है कि इंडियन अगर होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जज और यूरोपियन आएगा तो वो उसको नहीं कर सकता है, उसको ट्राई नहीं कर सकता है। तो इसमें ये था कि यूरोपियन सपोज है, अगर कोई मजिस्ट्रेट है, अभी वो इंडियन है, सो अगर उसने कुछ स्टेटमेंट पास करा, उसने ट्राई करा इसको और यूरोपियन सेटिस्फाइड नहीं है, द accused इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट, सो ही कैन आस्क फॉर द ज्यूरी टू डिसाइड। और इस ज्यूरी में ये होता था, और मैंने एक एग्जैक्ट नंबर आपको, मैंने एक बार देख लिया, एग्जैक्ट नंबर आपकी बुक में नहीं लिखा है, बट इट वॉज 12। अब इसमें 7 जो थे आपके अमेरिकन ही होते थे, ठीक है, आपके ब्रिटिशर्स होते थे यहाँ पर। 7 कुछ ऐसा होता था कि 7 ब्रिटिशर्स होते थे और कुछ 5 अमेरिकन, ऐसा कुछ होता था। So I'll start with the Indian National Congress in the second video. Thank you for watching this. Have a good day and all the best.